In previous class, we have seen the resolution of forces, and before that also we have seen the law of polygon of forces, law of triangle of law of forces, and law of parallelogram of the forces. These all laws are useful for solving the examples of the concurrent coplanar force system. So these forces, some of the analytical method and some are the graphical method to find the resultant or to resolve the single force into two component. It may be the oblique component and it may be the orthogonal component. Okay, so today we will see in lecture number your 21 equation of resultant of coplanar concurrent force system. So here you in this figure you can see uh, the forces are seen uh, because they are uh, meeting at one place. They are meeting at one place. That's why these forces are uh, called as uh, concurrent force system. Also, the forces are in one uh, meeting at one point. That's why they are called as the coplanar uh, concurrent force system. If the forces, if meeting as one point, then that is called as uh, uh, concurrent force system. Also, because all the forces are in one plane, so they are called as coplanar. So you can see here, this are the equation. You have to find out the equation of coplanar and concurrent. Coplanar means in one plane. Coplanar means what? Coplanar means all the forces in single plane. Also, concurrent means concurrent force system is all the forces they are meeting at one point. So concurrent force system means meeting at single point, meeting at single point. Okay, so this is nothing but your uh, concurrent uh, coplanar force system you are seeing in the figure. So there are how many forces given in figure you can see. In first there are four quadrant. If you divide the your graph paper into quadrant, then you can see there are how many quadrants are there. Four quadrants are there. That is, this one is the x-axis and this one is your y-axis. Okay, so y-axis, this is the first quadrant where all the values are coordinate values are uh, plus. In second quadrant, the y-axis x-axis value are negative, y-axis value are positive. In third quadrant, x and y both values are negative. And if you come to the fourth quadrant, x value was positive and y value are negative. So if you write in x and comma y coordinate in different coordinate system, so this is there. Okay, so you can see here, just this is for your understanding. This is not needed here, but you can see here the this along the x-axis if theta is there, then this is the cos component. So how many forces given? This is the F1 force, F2 force, second, third,
In third corner F3 4, in fourth corner F4 force. So four forces they are meeting at one point. So four forces they are meeting at one point. If I will draw another figure, the same figure, you can see this is a one point where force F1, this is the force F1, then force F2, this is the force F2, then force here F3 and force F4. So how many forces are there? Then I will draw the x-axis and y-axis. Okay. So how many forces are there in this coplanar concurrent force system? Four forces are there. Okay. How many forces are there? Four forces. So you can uh, see that the four forces are there, uh, and you can see here uh, you know the resolution of force. तो यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है? रिजल्टेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम. अब फोर्स सिस्टम है, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे और दे आर मेकिंग एंगल, this one making angle theta 1 with F1 force, F2 force, this one making theta 2 with the horizontal, that is with the x-axis, F3 which is making theta 3 with the x-axis, and F4 is making angle theta 4 with the x-axis. So all these angles are, so this is our axis. I will draw one second so that it is clear. And all the forces they are meeting at single point, that is F1, F2, F3 and F4. Okay. So all the forces they are meeting at सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम, एंड एक प्लेन में है तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. और कितने फोर्स दिए हैं? चार फोर्स है. अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं. ऑब्लिक कंपोनेंट में इंक्लाइंड होता है, वहां पर हम साइन रूल यूज करते हैं. और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में हम ऑर्थोगोनलिटी यूज करते हैं, जिसमें आपका दो कंपोनेंट एक्स और वाई, एफ एक्स और एफ वाई में हम डिवाइड करते हैं. तो एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज द एफ साइन थीटा. तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे आपके फोर्सेस को, तो मैं एफ वन को अगर पहले रिजॉल्व करता हूँ तो उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट रहेगा, इट वन विल बी द एफ वन cos of theta 1. Similarly, here y component of the F1 force, that is F1 cos of theta, sorry, sin of, यहाँ पर sin हो जाएगा ना, तो this is 90 degree, तो F1 sin of theta 1. तो पहले फोर्स को हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया. किस तरह रिजॉल्व किया समझ में आया आपको? F1 को हमने रिजॉल्व किया, F1 sin theta 1 vertical component along the y-axis, and F1 cos theta 1 horizontal component of force F1, that is along the x-axis. They are called as orthogonal component because they are making 90 degrees each other. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए ये दे आर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट. इसी तरह F2 को हम अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? F2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F2 cos theta 2,
और इसी तरह उसको वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा 2। तो वेरी सिंपल ना, समझ में आ रहा है आपको, रिजॉल्व कर रहे हैं हम। तो F1 F2 को हमने रिजॉल्व किया, अब हमको F3 रिजॉल्व करना है। एनीबडी कैन टेल मी। तो F3 अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, F3 cos ऑफ थीटा 3 एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F3 is F3 sin ऑफ थीटा 3। समझ में आ रहा है सबको। अब इसी तरह चौथा फोर्स हमारा जो है दैट इज F4, हम रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो हो F4 cos ऑफ थीटा 4 एंड इसी तरह F4 वर्टिकल कंपोनेंट F4 साइन ऑफ थीटा। तो हमने जो आपके जो फोर्स सिस्टम दिया है, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम जो दिया है, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया, है ना। तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से किस तरह रिजॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर भी आप जो फिगर में देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये लिखा है F1 cos थीटा 1, यहाँ लिखा है F1 sin थीटा 1, F2 sin थीटा 2, F2 cos थीटा 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी तरह F3 cos थीटा 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, F3 sin थीटा 3 वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F3, F4 sin theta 4 that is vertical component F4, and then horizontal component of F4 is F4 cos theta 4. So likewise, you have to convert into the orthogonal component, resolving the forces into orthogonal component if the concurrent force system is given. तो यहाँ समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको कि किस तरह रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी सिंपल। वापस से मैं आपको बताता हूँ, अगर F1 को मैं रिजॉल्व करूँ यहाँ पर, F1, तो F1 इज द फोर्स, और इसको मैं रिजॉल्व करता हूँ अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या रहेगा, इज मेकिंग एंगल थीटा 1, तो दिस वन F1 cos थीटा 1। So with the horizontal component, it is also with the angle, the is nothing but the cosine value, and the vertical component, if you take, it is the cosine value, that is F1 sine theta 1. So cos value or sine value you can get with the components. Similarly, all other four components you can find out and resolve the forces. तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे फोर्सेस हमने रिजॉल्व कर लिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? एनीबडी जो जिसको नहीं समझा वो पूछ सकता है, अगर समझ में आ गया तो हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक तो सबको समझ में आ गया। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर रिजोल्यूशन समझ में आ गया। अब रिजल्टेंट जो हमको मालूम करना है, रिजल्टेंट फोर्स आर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फोर्सेस आर देयर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट हमको मालूम है, हाउ वी आर फाइंड आउट रिजल्टेंट दैट आर इज इक्वल टू फॉर द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, हाँ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मैं बोल रहा हूँ। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर प्लस summation of f of y square. It will give the resultant because the orthogonal components are there, so that's why this is the formula. And because in an orthogonal component the theta is 90 degree, then similarly tan theta will be summation of fy upon summation of fx. This formula is nothing but uu,
your resultant and theta value. Okay, so theta, that angle may be in first quadrant, maybe second quadrant, maybe third quadrant, maybe fourth quadrant. Based on the theta value, you can decide. Based on the theta value, you can decide. Okay, so theta is the angle made by the resultant force R with horizontal. अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन, हम पहले समेशन ऑफ इफेक्ट्स मालूम करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन मालूम रहना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन क्यों? अब समझ लो यहाँ पर ये मेरा फोर्स है F1, मैंने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, है ना, दैट इज F1 cos थीटा 1, इसी तरह F1 sin थीटा 1। ओके, और इसी तरह हमारा मेरा F2 फोर्स है, उसको मैंने रिजॉल्व किया, तो ये F2 sin थीटा 2 और F2 cos थीटा 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 2 cos थीटा 2, है ना। अब इसका समेशन हमको मालूम करना है। तो अगर यहाँ पर हम देखो साइन कन्वेंशन लेते हैं, फोर्स गोइंग टूवर्ड्स राइट आर पॉजिटिव, तो यहाँ साइन कन्वेंशन क्या रहे हैं, जो फोर्स आपका एरो से मालूम होता है गोइंग टू राइट साइड, दे आर कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है ऐसे। इसी तरह फोर्स गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट आर नेगेटिव, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स विच आर गोइंग लेफ्ट साइड, दे आर नथिंग बट नेगेटिव। समझ में आ गया? तो अपना यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, हमने रिजॉल्व किया कितने कंपोनेंट पार्ट है, F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F4 cos थीटा 4, F3 cos थीटा 3। अब यहाँ देखिए ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके लिए डायरेक्शन का हमको डिसाइड करना जरूरी है। कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, जो राइट साइड जा रहे हैं उसको हम पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं उसको नेगेटिव पकड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए फिगर के अंदर F1 cos थीटा 1 किधर जा रहा है, राइट साइड में, ये राइट साइड में जा रहा है ना F1 cos थीटा 1, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। F2 cos थीटा 2 का एरो किधर है, लेफ्ट साइड है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह F3 cos थीटा 3, ये भी लेफ्ट साइड है, ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन F4 cos थीटा 4, ये राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो समेशन ऑफ इफेक्ट्स क्या हो जाएगा, तो समेशन ऑफ इफेक्ट्स विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, पहला F1 cos ऑफ थीटा 1, अब दूसरा क्या है, माइनस है F2 cos ऑफ थीटा 2, इसी तरह F3 also minus horizontal component, F3 cos of theta 3। अब यहाँ पर राइट साइड जा रहा है F4, ये पॉजिटिव है, राइट साइड अगर जा रहा है तो F4 cos of theta 4, that is the summation of fx। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, समेशन ऑफ fx आपको मालूम करना है ना, क्योंकि रिजल्टेंट मालूम करना है तो समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy आपको मालूम रहना चाहिए, थीटा भी मालूम करना है तो आपको मालूम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर मालूम किया, F1 cos थीटा 1, दिस वन इज पॉजिटिव, F2 cos theta 2, this is the negative, F3 cos theta 3, that is also negative, F4 cos theta 4, this is positive, you can see here. So likewise, you find out the summation of fx is equal to this F1 cos theta 1 minus F2 cos theta 2 minus F3 cos theta 3 plus F4 cos theta 4.
अब इसी तरह अगर हम आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, समेशन ऑफ एफ वाई, ये मालूम करने के लिए, समेशन ऑफ एफ वाई मालूम अगर हमको करना है, समेशन ऑफ एफ वाई हमको मालूम करना है, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन लगेगा। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, अगर आपका फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, है ना। जबकि हॉरिजॉन्टल में हम लोग ने क्या किया था कि राइट साइड अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड अगर वो जा रहा है तो वो क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर अपवर्ड अगर जा रहा है फोर्स तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, और डाउनवर्ड अगर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। तो इस तरह ये साइन कन्वेंशन से हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई मालूम करेंगे। तो अब हम आते हैं, हम समेशन ऑफ एफ वाई मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई। अब देखिए इधर हम मालूम करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई हियर, so you can see the in green color summation of fy। पहला फोर्स लेते हैं हम लोग, summation of fy, so here we can write down the upward is positive, तो डाउनवर्ड डेफिनेटली नेगेटिव, है ना। तो F1 को साइन थीटा वन क्या है, आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर यानी अपवर्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा F1 साइन थीटा वन। अब यहाँ पर F2 साइन थीटा टू, ये भी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो F2 साइन थीटा टू ये पॉजिटिव। उसके बाद F3, F3 यहाँ पर डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, देखिए F3 साइन थीटा थ्री, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस के साइन, F3 साइन ऑफ थीटा थ्री। इसी तरह F4 आप देखिए, F4 साइन थीटा फोर, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ भी माइनस आएगा, F4 साइन ऑफ थीटा फोर। तो दिस इज द समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई। तो इस तरह हमको शो करना पड़ता है कि राइट साइड पॉजिटिव, left side negative, upward positive, downward negative, and from that you can find out summation of fx, horizontal component of the forces, and summation of fy, that is vertical components of the forces। हम इस तरह मालूम करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखिए F1 sin theta 1, F2 sin theta 2, minus F3 sin theta 3, minus F4 sin theta 4, because F1 sin theta 1 is upward, F2 sin theta 2 is upward, therefore both are positive. And here you can see F3 sin theta 3 is downward, F4 sin theta 4 is also downward, then so that's why both are, you can see the negative. Okay, so that's why you can write down like that। तो यहाँ पर समेशन एफ वाई वापस से अगर हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर पे, तो F1 साइन थीटा वन प्लस F2 साइन थीटा टू प्लस, प्लस नहीं अब माइनस हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स के लिए, F3 साइन थीटा थ्री माइनस F4 साइन थीटा फोर। वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप सबको। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन एंड समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। अब रिजल्टेंट हमको मालूम करना है, तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंग्रुएंट फोर्स सिस्टम इज सेम एज दैट ऑफ, सॉरी, तो यहाँ पर वापस से यहाँ एफ एक्स की वैल्यू, समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आपने मालूम किया, समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू आपने मालूम किया, दैट वैल्यू शुड बी पुटेड एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इसी तरह समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको tan थीटा
और अगर थीटा आपको मालूम करना है, एंगल मालूम करना है रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ summation of fy upon summation of fx. तो summation of fy और fx ऑलरेडी वी आर फाइंड आउट हियर। इस तरह मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव, और टुवर्ड्स राइट है तो पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट है तो नेगेटिव। So likewise, you have to find out the equation of resultant of coplanar uh, coplanar uh, concurrent force system. So this is the equation of resultant of coplanar concurrent force system. That is R is equal to under root of summation of fx square plus summation of y square. इसी तरह tan theta is nothing but is equal to summation of y divided by summation of fx, tan theta, and resultant you can find out, where R is the resultant force of all the four forces, F1, F2, F3 and F4, and theta is the angle made by resultant. Theta is the angle made by the resultant R, and with the horizontal, you can see if this is the resultant shown in the red line, this is the resultant, then this is the angle theta which is making by the resultant with the horizontal. So this is nothing but from this uh, equation you can find out the easily resultant of the coplanar concurrent force system. अब कोपलेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो क्या करेंगे? ये तो कोपलेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपको समझ में आ गया। अब कोपलेनर नॉन कंकरेंट अगर फोर्स सिस्टम, देखिए आप मेरे साथ अगर लिख रहे होंगे तो आपको समझेगा, आप सिर्फ वॉच कर रहे होंगे तो आपको नहीं समझेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैकेनिक्स की क्लास में आप पेन पेपर नोटबुक और पेन लेकर बैठिए मैकेनिक्स, ओके, तो आपको समझ में आएगा। और मैंने बोला है बार बार आपको कि आपके जो वीडियोस है ऑन रहना चाहिए, क्या आप लिख रहे हो आपको देखना मेरा मकसूद है कि आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, है ना। ऑफ करके आप किधर क्या कर रहे हैं ये मुझको कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए मैंने आपको बोला कि कैमरा आपका ऑन रखिए, तो आप कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझको मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना। म्यूट रखिए लेकिन कैमरा ऑन, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? तो अभी जो हम लोग ने रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम मालूम किया, ये किसके लिए है? हाँ, ये है R इज इक्वल टू दैट इज कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं? कंकरेंट फोर्स सिस्टम यानी सब फोर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, है ना। और कोप्लेनर बोले तो एक प्लेन में सब फोर्स है। इसी तरह कोप्लेनर बट नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इसका मतलब कि फोर्सेस आर इन वन प्लेन, forces are in one plane but they are not meeting at one point. Forces are at one plane but they are not meeting at one point. अगर मैं ये एक बीम बनाता हूँ या कुछ भी मैं बनाता हूँ, आपका एक बीम अगर मैंने बनाया यहाँ पर, है ना, हॉरिजॉन्टल मेंबर बनाया मैंने, तो यहाँ पर अगर एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, तो ये फोर्सेस एक जगह मीट हो रहे हैं क्या? नहीं मीट हो रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस को। इसी तरह अगर आप क्वाड्रेंट में भी समझना चाहें, अगर मैं आपको इस तरह भी समझाऊं कि आपकी ये जो ये आपका क्वाड्रेंट है, एक फोर्स आपका यहाँ एक्ट हो रहा है, एक फोर्स आपका यहाँ एक्ट हो रहा है, एक एक फोर्स आपका इधर किधर एक्ट हो रहा है,
एक फोर्स आपका इधर किधर एक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है क्या? एक पॉइंट पे सब फोर्स मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तो दिस इज नॉट कंकरेंट फोर्स सिस्टम। एक प्लेन में दे आर कोप्लेनर बट दे आर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर एक प्लेन में लेकिन नॉन कंकरेंट, यानी दे आर नॉट मीटिंग एट पॉइंट फोर्स सिस्टम। तो अभी तक जो हम लोग ने इक्वेशन देखा वो किसके लिए देखा? दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। एक प्लेन में और एक पॉइंट पे मिलने वाले फोर्स सिस्टम के ताल्लुक से हमने रिजल्टेंट किस तरह मालूम करना है वो देखा, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा एक प्लेन और एक पॉइंट पर सब फोर्सेस मीट हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कंकरेंट। एक प्लेन है कोप्लेनर, तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम हम लोग ने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर but non-concurrent force system. The procedure of finding resultant of coplanar non-concurrent force system is same as that for coplanar concurrent force system. Only difference is in location of position of resultant force with respect to any reference point in the force system. तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपका वही पॉइंट से नहीं रहेगा, आपका रिजल्टेंट कहीं और रहेगा, वो भी कोई एक पॉइंट से आपको मालूम करना पड़ेगा। फॉर द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फॉलोइंग कंसेप्ट आर इम्पोर्टेंट। तो अगर हमको रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स हमको मालूम करना है तो नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, तो आपको नीचे के जो कंसेप्ट दिए हुए हैं वो आपको समझना जरूरी है। तो नीचे के कॉन्सेप्ट समझाने की बजाय मैं आपको ऊपर जो मैंने आपको समझाया वापस से रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसको हमको टाइम लगेगा, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो आई विल रिपीट द दिस ओनली टुडे, दिस equation of resultant of coplanar concurrent force system once again, and you can understand it. Okay, तो इसके लिए हम लोग will come to here। तो यहाँ पर मैं आपको वापस से समझाता हूँ किस तरह हम लोग ने रिजॉल्व किया और कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों ने मालूम किया। तो अगेन आई विल ड्रॉ दिस फिगर। ये मैंने एक पॉइंट लिया, सॉरी, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया। ओके, 4 क्वाड्रेंट हमारे हैं। ओके, one axis there and another axis you can draw here like this, axis y। ओके, अब यहाँ पर आपके फोर्सेस एक्ट होंगे, तो मैं ड्रॉ करता हूँ फोर्सेस आपके। यहाँ पर फोर्सेस में ड्रॉ करता हूँ। पहला फोर्स आपका F1, दूसरा फोर्स आपका F2, तीसरा फोर्स आपका F3, चौथा फोर्स आपका F4। ये आपका 4 फोर्सेस है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, क्योंकि एक पॉइंट पे सब मिल रहे हैं और एक प्लेन में है। F1 में एंगल बनाता है θ1, F2 बनाता है एंगल θ2, F3 बनाता है एंगल θ3, ओके, और F4 बनाता है θ4। तो ये एंगल है आपके। अब मैं इनको रिजॉल्व करूंगा डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो आप देखेंगे किस तरह रिजॉल्व हम करते हैं। हम रिजॉल्व अगर करते हैं तो देखिए, F1 को मैं रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, F1 cos θ1। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट में करूंगा तो F1 sin θ1। इसीलिए F2 को रिजॉल्व करूंगा
तो F2 cos theta 2 and F3 F2 sin theta 2। थर्ड फोर्स F3 को रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो F3 cos of theta 3 horizontal component, vertical component F3 sin of theta 3। अब रिजॉल्व करेंगे F4 को, ध्यान से लिखिए आप नोटबुक पर। तो दिस इज F4 cos theta 4 और इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट F4 sin theta 4। समझ में आ गया? इस तरह हमें मालूम करना है। नाउ वी विल फाइंड आउट द summation of fx is equal summation of fx हम मालूम करेंगे। दैट इज, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि राइट साइड जो फोर्स जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड जाने वाला डेफिनेटली वो निगेटिव रहेगा। तो लेफ्ट साइड जाने वाला क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर पहला फोर्स F1 लेंगे तो F1 राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव F1 cos of theta 1 है पॉजिटिव। लेकिन F2 क्या है? लेफ्ट साइड जा रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा F2 sin of theta 2। इसी तरह F3 भी निगेटिव है, लेफ्ट साइड जा रहा है F3, नो सॉरी cos of theta 2। इसी तरह F3 cos of theta 3। इसी तरह F4 राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, F4 राइट साइड जा रहा है तो cos theta 4 इज पॉजिटिव। तो लाइकवाइज वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ पर वापस से मैं करता हूँ समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट फोर्सेस को ऐड करेंगे हम। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि अपवर्ड जो जा रहा है फोर्स वो पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड जा रहा है वो क्या है? तो F1 अगर पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट पकड़ते हैं तो F1 साइन थीटा 1 ये क्या है? ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। इसी तरह F2 भी ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी पॉजिटिव, F2 साइन थीटा 2। F3 कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है तो वो माइनस हो जाएगा F3 साइन थीटा 3 प्लस इसी तरह F4 पॉजिटिव रहेगा। ये F4 पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? F4 कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग F4 is going F4 is going डाउनवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा क्या? नहीं, ये निगेटिव रहेगा। किसी ने बोला नहीं मुझको सर आप गलत कर रहे हो, तो यहाँ पर माइनस F4 साइन ऑफ थीटा। समझ में आ गया? अब व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट हमको मालूम करना है। रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या दिया है? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ f of x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f of y स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फॉर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। और इसी तरह tan थीटा is nothing but you can find out the value of theta using this summation of Fy upon summation of Fx. From this you can find out the value of theta. So this theta is nothing but the angle uh, making with the horizontal. This is the theta you can see here, angle making horizontal of the resultant. So this is the today's we have learned about the how to find out the equation of resultant of coplanar concurrent core system. तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वी विल
stop here and we'll continue later on. तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ आपको पूछना है समझना है, अदरवाइज we'll stop here. Thank you for joining.